Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 3, Nationalism in India. This video is for especially GSCB student. In part 1, we discuss about the factors which played the important role to create the feeling of nationalism, as well as we talk about the establishment of Indian National Congress. So I hope that you like that video. Those who still not watch that video, they please watch the video. For that, subscribe the channel and press the bell icon so you can find easily all the videos of all chapters and you get notification for the new videos. Okay, friends. So uh, in this video, we are going to talk about the uh, initial stage of Indian National Congress, as well as we talk about policy of divide and rule, partition of Bengal, Bang movement, Swadeshi movement, all that thing. So when Sir A.O. Hume established Indian National Congress in by the thought that he did not want to uh, revolt again in India, and that is why in 1885 he established Indian National Congress. With the establishment of the Indian National Congress, first meet what was held in Mumbai, Gokuldas Tejpal Sanskrit School in 1885. There were 72 representatives. Afterwards, the second meeting was held in Kolkata in 1886. The number of members increased 432, and the third session was organized in Chennai in 1887, and the number of members increased to 607. So this was the first political party of our Indian. It was established by the British. The A.O. Hume, Octavian Alien Hume, was the Britisher. But ultimately, this Indian National Congress given so many ideas to our people how to fight politically with the Britishers. So in the beginning, many success found. What kind of success found? That is mentioned here. The initial activities of the Indian National Congress were moderate and abided by the Constitution. So moderate and the extremists both having difference. Moderate believed in uh, cooperation. British government will cooperate to us if we represent our problems with them in a particular manner. That is their thought. While extremists believe that why should we represent our problem while the country is our own. So that is the main difference between moderates and extremists that we discussed further in next topic. It included putting up demands for more political rights, economic and social growth and development of education. तो यहाँ दोस्तों ये जो मॉडरेटर्स थे वो पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे. बट डिमांड क्यों करनी है जबकि ये कंट्री हमारा है? अमोंग अदर डिमांड्स, इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, reduction of expenditure on military and other administrative departments, debt relief to farmers, revival of the cottage industries, etc. were included. The British government turned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. तो यहाँ पे जो मॉडरेटर्स थे वो सिर्फ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे जो ऑलरेडी हमारा राइट्स था. बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने वो एक्सेप्ट नहीं किया एंड दैट क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर स्ट्रगल बिकॉज इट्स क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि यूनिटी बनाने के लिए dissatisfaction is one of the important factor. The Indian National Congress passed many resolutions such as the expansion of legislative councils and keep at least 50% elected
representatives in it at the central and regional level. The parliament should be more answerable and transparent to the regional assemblies. Due to the demand of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. तो यहाँ पे हमने डिमांड जो की थी वो डिमांड का इंटेंशन बहुत बड़ा था कि भाई उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे 50% मेंबर होने चाहिए. अगर हमारे मेंबर वहाँ पे रहेंगे तो वो जो भी पॉलिसीज बनाते उसका हम ऑपोज डायरेक्टली कर सकते हैं. पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वो ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की. उसके बदले उन्होंने क्या हमें दे दिया, हमारे प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम दे दी और पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी. बट दिस इज ऑल्सो वेरी important for the future. The Indian National Congress inspired many educated youths and fostered nationalism in the educated class. तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे उनके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सब एक्टिविटी की इफेक्ट बहुत हुई. एज अ रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर्स ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. और उसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे जो जो जिनके अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म था और जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने लगे. अब यहाँ पे वही सेशन वाला जो मैंने अभी आपको बोला था वही है. फर्स्ट सेशन हेल्ड इन 1885 बॉम्बे. President was W.C. Banerjee, Vyomesh Chandra Banerjee. Second held in 1886 कलकत्ता, दादा भाई नवरोजी. 1893 लाहौर में एक सेशन हुआ था, वहाँ पे भी दादा भाई नवरोजी थे. और 1906 में कलकत्ता में वहाँ पे भी दादा भाई नवरोजी थे. ये सब सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जिसमें से फर्स्ट टू और 1887 वाला टेक्स्ट बुक के अंदर है. ये दो वहाँ पे नहीं दिखाए हैं. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पावरफुल होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ किया, विच इज़ नोन एज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो अब डिवाइड एंड रूल ये बेस्ट पॉलिसी है किसी को भी बिना बैटल के हराने के लिए. अब आप बैटल ऑफ प्लासी देख लो 1857, वहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल ही चला था, क्योंकि उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी साइड कर दिया, सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और फिर इस तरह से उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता. सो दिस वाज द मेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. द इनिशियल सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू hostility. The British government officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. Governor General Lord Curzon took certain steps against the interests of the national integrity and ignored the opinion of the Indians. He partitioned Bengal in 1905 CE as a part of his policy of divide and rule. तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इम्प्रूवमेंट हो रही थी वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. अब इसको किसी ना किसी वजह से उनको कंट्रोल करना था. इसके लिए इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव लोग थे वो बंगाल के थे. और आज की डेट में भी बंगाल के जो लोग हैं वो वन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल ऑफ आवर कंट्री ऐसा बोला जाता है. तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल के पार्टीशन कर दिए. अब लॉर्ड कर्जन ये है. लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905 इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. 42 years later, India divided into Pakistan and India and Bangladesh. Communal riots still happen today. तो ये बंगाल का पार्टीशन नहीं था, इनिशियली ये इंडिया का पार्टीशन था. जो वो टाइम के जो लीडर्स थे वो समझते थे. फाइनली 1947 में 14 अगस्त को इंडिया में से पाकिस्तान रिलीज़ हुआ. ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की फाइनल इफेक्ट थी. और आज की डेट में भी हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि दे वर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री. पर लॉर्ड कर्जन ने जो सीड हेटर्ड का जो सीड उसने ग्रो किया वो आज एक बड़ा सा ट्री बन गया है. अब उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी ये बिलीव करने को तैयार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम एक ही कंट्री के लोग हैं. अब डिवाइड एंड रूल के कुछ फैक्टर्स देख देते हैं. The British policy of the divide and rule led to hatred between the Hindus and the Muslims. It resulted into the partition of Bengal into East Bengal and West Bengal. अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप है. ईस्ट बंगाल,
और ये वेस्ट बंगाल यानी जो अभी हमारा वेस्ट बंगाल है वो, और ईस्ट बंगाल यानी जिसको आज की डेट में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो। द पार्टीशन triggered Swadeshi movement which aggravated the spirit of patriotism in the Indians. Indians held protests and mass rallies against the British. तो बंगाल के पार्टीशन में वो जो मिस्टेक हमने 1857 के रिवोल्ट में की थी उसको यहाँ पे हमने रिपीट नहीं किया। यहाँ पे जो यूनिटी हमें चाहिए थी वो क्रिएट करने का एकदम सॉलिड फैक्टर यहाँ से मिला बंगाल के पार्टीशन से। बट उसकी नेगेटिव इफेक्ट उसके नेक्स्ट ईयर 1906 में दिख गई थी, जो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इन द 1930s एंड 40s कांग्रेस फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज फ्रॉम द मुस्लिम लीग। ये जो मुस्लिम लीग है जो 1906 में एस्टेब्लिश हुई थी, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। द ब्रिटिश that Muslim would become an oppressed minority after the British left. The Muslim League therefore wanted Muslim majority region to be formed into a separate state of Pakistan. Faced with bloody religious riots in the late 1940s, the British partitioned India when they departed. A secular India and a Muslim dominated Pakistan resulted truncated and geographically separated West and East Pakistan, which became Bangladesh in 1971. Nationalist Muslims refused to accept Pakistan. India still has one of the largest Muslim population in the world, but the position of religious hatred and violence remain. तो ये है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का स्टार्टिंग ये न्यूज़पेपर कटिंग है 2/2/1835 का। लॉर्ड मैक्यूलीज ने ये बोला है, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ अ बेगर, हु इज़ अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन द कंट्री। अब ये सेंटेंस से हमें पता चलता है कि तब इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कैसी थी। एक भी बेगर नहीं था, ना ही कोई चोर था। सच हाई मोरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominant nation. तो यहाँ पे लॉर्ड मैक्यूली ने इंग्लिश एजुकेशन रिफर किया किस लिए, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ के लोगों का अप्रोच कितना है। अब आज से 2500 साल पहले जब यहाँ पे सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, जब अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, ब्रिटेन की कोई कल्चर इतना हाई पोटेंशियल नहीं था, तब इंडिया में म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, लिटरेचर कितनी एक्टिविटीज़ होती थी। आज भी आप देख लो कैलाशनाथ टेम्पल या अजंता इलोरा की केव्स, ये इसके एविडेंस है। अब ये सब ये जानता था, उसके दिमाग में आया और उसने क्या सोचा कि अगर हमने एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया तो इंडियंस जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गवा बैठेंगे और अल्टीमेटली हम इंडिया के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। बाकी इंडिया को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है। और उसकी इफेक्ट ये हुई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो आपस में लड़ने से ऑलवेज लॉस हमारा ही होता है, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। अब जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया तो उसकी इम्पैक्ट क्या हुई। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो रीज़न क्या दिया गया वो यहाँ पे है। Bengal was the biggest province of the British India. It included certain part of Bihar and Orissa with a population more than 7 crore 80 lakhs. It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult. Instead of removing the part of Bihar and Orissa, eastern Bengal with a majority of Muslim population was separated from it. Bengal was the most active province in nationalist activities at that time.
The main intention of Lord Curzon was to promote communal differences between Hindus and Muslims by this action and thus weaken the momentum of political awakening among the people. National leaders and the common people understood the intention behind the partition and opposed it intensely. तो यहाँ पे बंगाल सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का. अब वो टाइम पे उड़ीसा और बिहार भी उसका पार्ट थे. अब लॉर्ड कर्जन को अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ही प्रॉब्लम आता तो वो बिहार और उड़ीसा को अलग करता, जैसे जैसे आज की डेट में है. तो उसने क्या किया कि मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे थी ये वाला पोर्शन उसको अलग कर दिया और यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी. उसका इंटेंशन यही था कि लोग ये झमेले में बिजी हो जाए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रोग्रेस है वो रुक जाए. और उसकी वजह से उसने हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने के लिए बंगाल के पार्टीशन किए. Reason for partition: the British had followed a divide and rule policy in India. Even in the census, they categorized people according to the religion and viewed and treated them as a separate from each other. They had based their knowledge of the peoples of India on the basic religious texts and the intrinsic differences they found in them one instead of one on the way they existed in the present. तो इन्होंने रिलीजन का जो मैटर था जिसके लिए आज हम लोग लड़ रहे हैं वो इन्होंने प्रोड्यूस किया था. 16 October 1905, Lord Curzon, Viceroy, aim was to have efficient administration. Real reason was to crush the nationalist movement, divide between Hindu and Muslim. और भी है यहाँ पे फैक्ट्स हमारे पास. The official excuses for the partition were that Bengal was too large a state geographically, its population was too large, the partition would bring administrative efficiency. The real reason was the Bengal at that time was India's most politically conscious state and a home to many nationalist leaders. Partition was meant to strike a blow at the unity of the Indians in Bengal and weaken the national movement. बंगाल में से बहुत सारे नेशनल लीडर थे. ये सब रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल. पॉपुलेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 54 मिलियन, जिसमें से 42 मिलियन हिंदू, 12 मिलियन मुस्लिम. ईस्ट बंगाल में 31 मिलियन, उसमें से 12 मिलियन हिंदू और 18 मिलियन मुस्लिम. तो यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, यहाँ हिंदू ज़्यादा है. उसने ये बेनिफिट लिया और ये दोनों को अलग कर दिया. यहाँ न्यूज़पेपर कटिंग भी है वो टाइम पे. जब बढ़ गया बंगाल, अविभाजित बंगाल का क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग मील फ्रांस के जितना बड़ा था, जबकि आबादी 8 करोड़ एंड कमाई 113 लाख रुपये थी. बंटवारे का उद्देश्य प्रशासनिक दबाव कम करना और देश की आज़ादी के लिए जारी आंदोलन को कमज़ोर बनाना था. इस दिन को एक काले दिवस में मनाया जाता है. लोग व्रत रखते हैं और राखियाँ बांधते हैं. सन 1905 में 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल को 2 टुकड़े कर दिए. वंदे मातरम और अमर सोनार बंगाल इस कदम के खिलाफ विरोध के प्रतीक बनकर उभरे थे. तो ये जो बंगाल का डिवीज़न हुआ वो लोगों को एग्जैक्टली पता था कि लॉर्ड कर्जन बंगाल को डिवाइड क्यों करना चाहता था. और जब उसने बंगाल के डिवीज़न किए तो उसके साथ में ही यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट चालू हो गई. ये जो यूनिटी अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, अगर यही 1857 में हमें मिली होती तो हो सकता है कि 15 अगस्त 1857 वी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे. बट वहाँ पे जो हमने मिस्टेक की, वहाँ से हमने जो सीखा वो यहाँ पे हमें देखने को मिला. बंग बंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. People opposed this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstration and by distributing pamphlets. Vande Mataram song from the novel Anand Mat written by Bankim Chandra Chattopadhyay. ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय.
became the popular slogan during this protest. तो उन्होंने वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो लिखा. ये है आनंद मठ बुक. ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बुक के साथ में ये बंगाली में लिखा हुआ है. और ये वंदे मातरम स्लोगन वो टाइम पे सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में बस गया था. पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे. यहाँ गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है यानी सैड डे. पीपल वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ यूनिटी. तो इस तरह से लोगों ने रैलियाँ निकाली. 6 साल तक ये सब चला और 1911 में बंगाल के डिवीज़न को कैंसल कर दिया गया. एंड दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ आवर इंडियन आफ्टर ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया. द पार्टीशन was vehemently opposed by the masses. They started an anti-partition movement on 7th August 1905. On this day, Anand Mohan Bose addressed a huge public gathering of almost 50,000 people at the Calcutta Town Hall. A resolution of Swadeshi and boycott were passed. The movement spread like wildfire throughout Bengal and all classes of people joined the movement. क्योंकि Bengal was one of the intelligent state of that time. Many political leaders came from Bengal, and that is why the people of Bengal support this movement strongly. And this was impact on other state of India also. And due to that, Swadeshi movement was started. Swadeshi movement. It was decided to intensify the movement against the partition of Bengal, Bang Bang movement, and expand its base. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian स्वदेशी goods only. जैसे आज के डेट में मोदी साहब ने बोला है मेक इन इंडिया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था. द बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स यानी फॉरेन के गुड्स को यूज़ नहीं करना है. टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन लो. To achieve these goals, a committee was formed under the leadership of renowned member of the Indian National Congress like Surendranath Banerjee. तो ये है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. 10 November 1848 to 6 August 1925. Then after Bipin Chandra Pal. So this is the Bipin Chandra Pal, 1858 to 1932. Then after Arvind Ghosh. So this is the Sri Arvindo Ghosh, 1872 to 1950. तो इनके गाइडेंस में कमेटी बनाई गई. दे अर्ज द इंडियंस टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एंड यूज स्वदेशी गुड्स. उन्होंने लोगों को बोला कि ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी है, हमारी खुद की प्रोडक्ट यूज़ करो. Through articles of newspaper, processions, public meetings and folk songs, people were made to understand the importance of using Swadeshi goods. Factories were started to produce Swadeshi goods. The import of goods like textiles, salt, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. from England decreased and drastically and the sale of Indian commodities and textile increased. The Swadeshi movement spread in other parts of India too. तो यहाँ पे इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होता था, भाई खुद का चरखा बनाओ, खुद के कपड़े बनाओ. फिर लोग इस तरह से रैलियाज निकालते थे. इस तरह से बॉन फायर होता था, चौराहों के बीच में फॉरेन गुड्स को ऐसे जला दिया जाता था. सो दीज आर द पिक्चर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. वो टाइम पे इस तरह से ये सब एक्टिविटीज़ होती थी. इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान हुआ और उसकी इम्पैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट तक गई. और वहाँ जब क्वेश्चन हुआ कि ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं और जब रीज़न पता चला कि बंगाल के डिवीज़न की वजह से है, तो 1911 में बंगाल के डिवीज़न को कैंसिल कर दिया गया. उसके साथ में नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया. The third feature associated with the Swadeshi or the boycott movement was the national education. Students took an active part in the Bang Bang movement. As a result, many
Punitive actions such as laying fine or expelling students from the school college were taken by the government. This called for an optional arrangement of educational schools college for students. In 1907, 25 national secondary schools and 300 national primary schools became functional in Bengal. Rabindranath Tagore started Vishwa Bharati School in Santi Niketan in 1901 CE. यह है शांति निकेतन, यह है रविंद्रनाथ टैगोर। उसके उनके 3 पिक्चर है, जब वो छोटे थे तो कैसे दिखते थे, नोबल प्राइज़ विनर, फिर यंग एज में और ओल्ड एज में। तो बहुत ही टैलेंटेड थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये इन्होंने जो स्कूल शांति निकेतन स्टार्ट किया वो आज की डेट में भी है। The British government failed in subsidizing the Bang Bang movement. Finally, the British government had to cancel the partition of Bengal in the year 1911. 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह पार्टीशन कैंसिल किया। It was a historical and memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violent manner. और ये हमारी 1757 से जो भी हम हार रहे थे उसके बाद ये हमारी फर्स्ट विक्ट्री थी। The Vishwabhati Vidyalaya started in Santiniketan by Rabindranath Tagore was conferred the status of Central Vishwabhati University in the year 1951. Here the students are taught to become self-reliant and proper conduct of behavior for a good life. तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी पिक्चर। गुरुदेव के नाम से जाना जाता था उनको 1861 to 1941। उसके बाद अब जो बात आ रही है वो है एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक दादाभाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीव्ड इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, यानी लीगल तरीके से। दे वर नोन एज द मॉडरेट्स, और उनको मॉडरेट्स के नाम से जाने जाना लगा। सिंस दे हैड एडोप्टेड अ मॉडरेट एटीट्यूड as per the trend of the time, the moderates prepared a strong ground for national awakening by unifying the educated middle class. They sowed the seed of self-rule, equality, democracy, freedom in the mind of Indians. The outcome of their work formed a group of Indian youth who were enthusiastically awakened and confident. तो ये जो दादा भाई नवरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये लोग लीगल तरीके से ब्रिटिशर्स के पास अपने राइट्स चाहते थे, पर कुछ इनमें से ही इनके ट्रेन किए हुए ही कुछ ग्रुप के दिमाग में ऐसी बात आई कि भाई हमारी कंट्री में हम क्यों डिमांड करें, जबकि वो तो हमारा बर्थ राइट होना चाहिए। और उन्होंने अग्रेसिव पॉलिसी एक्सेप्ट की, ना ही कि इनके जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, और उनको बोला गया एक्सट्रीमिस्ट, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब। In contrast to the moderate ideology, there was a group of 3 leaders, Lala Lajpat Rai from Punjab, Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra and Bipin Chandra Pal from Bengal, जिसको बोला जाता था लाल बाल पाल. These leaders wanted to acquire the self-rule not as a favor but as their right. They followed the policy of aggression and revolution and hence were called the extremists. तो ये जो लोग थे जो ऐसा मानते थे कि भाई हमारी कंट्री में हम डिमांड क्यों करें, ये तो हमारा राइट है, तो ये जो ग्रुप था लाल बाल पाल का, उनको बोला गया एक्सट्रीमिस्ट, जिनकी इफेक्ट रेवोल्यूशनरीज जो आगे बनने वाले थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये सब के ऊपर होने वाली थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले and M.G. Ranade were some of the important moderate leaders. The demand of moderates were described as political mendicancy. In the beginning of the British government showed a friendly attitude toward the Congress. तो ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी कि जब उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे वो सीधा विक्ट्री नहीं करने वाले तो वो फ्रेंडशिप करते थे। 1857 में भी यही हुआ था। डेलहाउसी ने जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी,
वहाँ पे भी हमने वही देखा था कि स्टार्टिंग में ये जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रेंडशिप प्रिफर करते थे, फिर उसके बाद धीरे से वो अपना ओरिजिनल रूप दिखाते थे, वो अपना फ़ायदा पहले देखते थे, जो हमने सेमिस्टर 1 में डिस्कस किया है पूरे डिटेल में। तो ये ब्रिटिशर्स का नेचर था। पर यहाँ पे जो लोग थे कुछ, वो ब्रिटिशर्स के ये नेचर को जानते थे। अब एक्सट्रीमिस्ट में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब थे। और मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, एस.एन. बैनर्जी, ये सब लोग थे। तो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में अब जो भी है और इसके बाद की स्टोरी में क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। यहाँ तक जो भी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे, होम रूल मूवमेंट के बारे में जानेंगे, मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे। सो to get the notification of that video, please subscribe the channel and press the bell icon. I hope that you all guys like this video very much. If you are having any doubt, you can ask me your question anytime. Till then, stay home, stay safe, wash your hands many times, wear a mask and maintain the social distance, and take care of yourself as well as your family too. Thank you very much. God bless you.